Hello students, welcome back. Students, today we are going to discuss electronic configuration of atoms or elements. Now students, electronic configuration का मतलब क्या है पहले वो समझना है आपको. So students, the distribution of electrons into orbitals of an atom is called its electronic configuration. And students, electronic configuration simply means filling of the orbitals. And how it is done? That we have learned in previous lecture. So the filling of electrons into atomic orbitals involves three rules. First is Aufbau's rule or Aufbau's principle, according to which electrons are filled in increasing order of energy of atomic orbitals. That means हम उस ऑर्बिटल को पहले फिल करेंगे जिसका एनर्जी लो है and then subsequent addition is done in increasing order. Second is Pauli's exclusion principle, according to which an orbital can have maximum of 2 electrons with opposite spin. And third rule, students, we have is Hund's rule of maximum multiplicity, according to which no pairing of electrons into atomic orbitals of same subshell is done until each orbital is singly filled. So students, in तीन rules को use करके now we will distribute electrons into orbitals of an atom, and this is called electronic configuration. But students, before we write electronic configuration, I have to tell you that an atomic orbital, while writing electronic configuration or while reporting electronic configuration, is represented by a square box or by a circle. So this is how we represent atomic orbital. And then students, the electrons which are to be distributed in orbitals, they are represented by arrows pointing upwards or downwards depending upon the spin of electron. So आप बॉक्स में भी या फिर सर्कल में इस तरह से शो करेंगे. And thirdly students, each orbital is designated or represented by this notation, where this n is for principal quantum number, L is for angular quantum number, and this power or we say exponential power x represents the number of electrons. So this is for the principal quantum number. That means आपको पता चल जाएगा वो ऑर्बिटल कौन से शेल का है. And this is angular quantum number और azimuthal quantum number. इससे स्टूडेंट्स आपको लग जाएगा पता that वो ऑर्बिटल कौन से सबशेल का है. And then x is the number of electrons. So x से हमें पता चलेगा कितने इलेक्ट्रॉन्स उस पर्टिकुलर ऑर्बिटल या उस पर्टिकुलर सबशेल में है. सो स्टूडेंट्स, ये आपको पता होना चाहिए. लाइक मैं आपको एग्जांपल बताता हूं स्टूडेंट्स. से इफ आई हैव टू फिल 1 इलेक्ट्रॉन इन 4s, सो मैं उसको ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा. दिस n इज फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट मींस दिस ऑर्बिटल इज अ फोर्थ शेल, एंड l आपका यहां पर 0 है, सो s सबशेल को डेजिग्नेट करता है. सो दैट मींस s सबशेल का वो ऑर्बिटल है, एंड 1 x का वैल्यू हो गया. दैट मींस वी हैव टू फिल 1 इलेक्ट्रॉन in that orbital. So students, ये सब सीखने के बाद now I will illustrate how to write electronic configuration. Now students, सबसे पहला काम electronic configuration के लिए आपको ये पता होना चाहिए how many electrons you have to distribute. And number of electrons in an atom is equal to the number of protons inside the nucleus, because on the whole atom is electrically neutral. And number of protons are given by atomic number. So जितना atomic number है, and since atom on the whole is electrically neutral, so that means atomic number बताएगा आपको protons कितने हैं, and जितने protons है extra nuclear part में उतने ही electrons भी होंगे. So students, atomic number से आपको पता चल जाता है कितने electrons आपको distribute करने हैं. So let's start students. First element we have hydrogen, whose atomic number
is 1. So that means there is one electron in the extranuclear part also. So we have to fill that electron, and students, we know that according to Hoffa sequence, the first electron will go into the orbital with lowest energy, that is 1s, and there is, since one electron, that electron occupies 1s orbital. And how we represent it? Orbital diagram will be एक box, s में सिर्फ, and then there is one electron. So this is how we represent electronic configuration, or we write electronic configuration. Next element says helium, whose atomic number is 2. इसका मतलब हुआ आपको दो इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है. एंड स्टूडेंट 1s, अभी एक इलेक्ट्रॉन है, बट आपको पता है 1s में दो इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं. सो आप उसको पूरी तरह से फिल कर दो. नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज 1s filled with 2 electrons. दोनों के स्पिन ऑपोजिट होंगे. नाउ स्टूडेंट्स, अगला एलिमेंट होगा आपका लिथियम, whose atomic number is 3. नाउ 3 इलेक्ट्रॉन्स को भरना है. आपको पता है पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स तो 1s में चले गए. अब आपको पता है जब आपका लोअर ऑर्बिटल पूरी तरह से फिल हो चुका हो, अब आपको सब्सिक्वेंट एडिशन हायर ऑर्बिटल्स में करना है. 1s के बाद जो एनर्जी Hoffa सीक्वेंस में ऑर्बिटल आएगा, इट इज 2s. आपके ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स 1s को अकोमोडेट कर चुके हैं, सो तीसरा इलेक्ट्रॉन 2s में जाएगा. सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिथियम. नाउ स्टूडेंट्स, ऑर्बिटल डायग्राम आप इसको 1s2 is the electronic configuration of helium. So we can write configuration of lithium with respect to helium. So we write helium, and then the third electron goes into 2s1. ऐसे भी लिख सकते हैं. और सिंपली ऑर्बिटल डायग्राम में आप अब वैलेंस शेल को ही लिखो. You can write it as helium तो हो गया, and then 2s. This is now 2s, and we have how many electron? 1. So this is lithium. So students, इसी तरह से अब आप मूव कर जाओ. After hydrogen, helium, lithium, we have beryllium, whose atomic number is 4. And then again students, आपके पहले 2 इलेक्ट्रॉन 1s में जाएंगे. दैट मीन्स हीलियम लाइक कॉन्फ़िगरेशन हो गया. आप इसको 2 लिख सकते हो. जस्ट आपको याद रहेगा कि पहले 2 इलेक्ट्रॉन 1s में चले गए, जो कि हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन है. एंड देन नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके 2s में जाएंगे. स्टूडेंट्स, 2s में अभी 2 इलेक्ट्रॉन्स और जा सकते हैं. सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट इट. सो बेरिलियम इज, यू मे राइट इट एज 1s2. मैं पूरा बता देता हूं. 1s2 and then 2s2, or simply we can write it as what? Helium and then 2s2, and orbital diagram would be what? आपके पास 2s है, and how many electrons we have? 2, जिसको आप एरो से शो करोगे. So this is how we write configuration. Now students, next element we have boron, whose atomic number is 5. So आपको पहले 2 इलेक्ट्रॉन 1s में जाएंगे. पूरा फिल होने के बाद नेक्स्ट 2 दे एंटर 2s. नाउ 2s भी आप फुली फिल्ड है, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं डाल सकते. अब आपको अगले ऑर्बिटल में जाना पड़ेगा, जो कि हायर एनर्जी का है. एंड स्टूडेंट्स, वी नो दैट 2s के बाद आपको अब फिल करना है 2p को. एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड? 4. अभी कितना और हमें डालना है स्टूडेंट्स? 5 इलेक्ट्रॉन है, एक दैट विल गो इनटू 2p सबशेल. सो स्टूडेंट्स, यहां तक का कॉन्फ़िगरेशन हीलियम का हो गया. सो वी कैन ऑल्सो राइट इट एज हीलियम, एंड देन वैलेंस शेल, दैट इज सेकेंड शेल, वी हैव 2s2 and 2p1. एंड विद द और ऑर्बिटल डायग्राम वुड बी व्हाट? अगर मुझे इसको ऑर्बिटल डायग्राम से शो करना, स्टूडेंट, 2s हीलियम के बाद 2s we have 2 electrons and 2p. Now students, we know that in 2p subshell there are 3 orbitals, and how many electrons we have to distribute? Only 1. So ये इधर जाएगा. So this is how we write configurations. Now let's move. Students, after boron we have carbon, whose atomic number is 6. So first 2 electrons
they occupy 1s orbital. The next two electrons, they occupy 2s orbital. And then we have to now fill 2p subshell. 4 आपने ऑलरेडी भर दिए स्टूडेंट, सो 2 और भरने हैं, सो दे विल गो इनटू 2p subshell. और वी कैन राइट इट एज व्हाट, यहां तक का कॉन्फ़िगरेशन हीलियम का है. सो जब तक अब नेक्स्ट नोबल गैस नहीं आता, आप हीलियम का रेफरेंस यूज कर सकते हैं. सो एज 2 हीलियम 2s2 एंड 2p2. एंड स्टूडेंट्स नाउ ऑर्बिटल डायग्राम, वैलेंस शेल को ही मैं लिखता हूं. वी हैव 2s, 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2p. अभी 2p में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है. स्टूडेंट्स पहले आपको हुंस रूल को अप्लाई करना है. यहां पर पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं विद ऑपोजिट स्पिन, बट व्हेन वी हैव 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, दैट मींस एक ही अगर सबशेल के 3 ऑर्बिटल्स इक्वल एनर्जी के हैं, देन नो पेयरिंग इज डन अंटिल ईच ऑर्बिटल इज सिंगली फिल्ड. दैट मींस आपको पहले इलेक्ट्रॉन्स को पैरेलल स्पिन के साथ फिल करना है, उसके बाद अगर जरूरत हो तो पेयरिंग करनी है. सो दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ carbon. So in ground state, carbon has, we say, 2 unpaired electrons. But students, later on we'll learn that carbon जब bond बनाता है वो excited state में बनाएगा, तभी वो 4 bonds बनाएगा. So अभी के लिए ground state configuration is this. So next element, so we have now nitrogen, whose atomic number is 7. 7 के लिए first 2 electrons as usual 1s में जाएंगे, नेक्स्ट 2s में, एंड स्टूडेंट्स 2p. आपको बताया मैक्सिमम p कैन हैव 6, और अभी आपको सिर्फ और कितने इलेक्ट्रॉन्स भरने, 3. सो दे कैन ऑक्यूपाई 2p सबशेल. सो 1s2 मीन्स हीलियम, 2s2 एंड 2p3. एंड ऑर्बिटल डायग्राम वैलेंस शेल को ही शो करते हैं. 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2p we have 3 electrons, but no pairing is done until each orbital is singly filled. So this is orbital diagram of nitrogen. Now students, आप इसी तरह से configuration लिखते जाएंगे. ठीक है, मैंने नाइट्रोजन तक लिख दिया. Then you will have oxygen. ठीक है, उसके बाद oxygen has atomic number 8. So configuration would be 1s2, 2s2, 2p4, which can also be represented as helium. Then we have what? 2s2, 2p4, and orbital diagram would be, वैलेंस शेल को ही लिख रहा हूं, 2s2 and 2p4. Now students see, पहले आप पैरेलल स्पिन के साथ इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दोगे. नाउ स्टूडेंट्स, अब आपको यह समझना है दैट 4th इलेक्ट्रॉन आपको अब और पैरेलल स्पिन के साथ इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते क्योंकि सभी ऑर्बिटल सिंगली फिल्ड है. सो 4th इलेक्ट्रॉन आपका अब यहां आएगा. दैट मींस अब आप पेयरिंग कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ वी राइट कॉन्फ़िगरेशन. अभी ऐसे ही स्टूडेंट्स आप फ्लोरीन का लिख लेना, हुज एटॉमिक नंबर इज 9. सो 1s2, 2s2, it would be 2p5. Then students, we have neon, which is again a noble gas. 10 है उसका atomic number, so we have to distribute 10 electrons. पहले 2 1s में, next 2 they enter 2s, and then 2p6. Now आपको पता है 2p6 means अब आप p में और इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते. So students, अब अगर सपोज आपको नेक्स्ट एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, से सोडियम, whose atomic number is 11. So 1s2, 2s2, 2p6, and now 11th electron. Students, 2p subshell में मैक्सिमम 2p6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं. p सबशेल में वो ऑलरेडी है. सो अब आपका अगला इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स 11th इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, इनटू द नेक्स्ट हायर ऑर्बिटल, जो कि आपका 3rd शेल का s3s होगा. दैट मीन्स आपका 11th इलेक्ट्रॉन विल गो इनटू
3s ऑर्बिटल. सो यहां तक का कॉन्फ़िगरेशन स्टूडेंट्स ऑलरेडी किसका है? नोबल गैस का. सो आप नोबल गैस के रिस्पेक्ट में लिखेंगे अब. सो यहां तक 10 इलेक्ट्रॉन हो गए. सो 3s1. सो वी से दैट नियॉन तक का कॉन्फ़िगरेशन आपको ऑलरेडी पता है. एंड देन 3s. if this is 3s, then we have 1 electron in sodium. Students, इसी तरह से if we have to write electronic configuration of magnesium, then it would be neon and then 3s what 10. यहां तक हो गए थे ऑलरेडी. सो 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो ऑर्बिटल डायग्राम में स्टूडेंट्स आप s में एक और इलेक्ट्रॉन डाल दोगे. देन वी हैव एल्यूमिनियम whose atomic number is 13. So now we distribute 13 electrons. How? Neon यहां तक 10 हो गए. 3s2, so 12. And then higher orbital होगा 3p. So we will have 1 electron in 3p subshell. So this is electronic configuration of aluminium. Silicon has 14 electrons because atomic number is 14. So it would be neon 3s2, so 12 हो गया. And then 13th and 14th electron, they enter into what? 3p subshell. So students, this is how we write configuration. So after silicon, we have phosphorus 15. So neon. Then we have 3s2 and 3p. 3. So just like नाइट्रोजन की तरह है, उसी की फैमिली का एलिमेंट है. So 3s2 and 3p 3. No pairing is done until each orbital is singly filled. Then we have sulfur, which is neon, and then 3s2 and 3p4. So अगर आपको उसको रिप्रेजेंट करना हो स्टूडेंट्स, so see ऑर्बिटल डायग्राम से वैलेंस शेल 3s2 and 3p4, आप फोर्थ इलेक्ट्रॉन इधर डाल दोगे. We have next chlorine 17. So with respect to neon, it is neon 10, 3s2 and 3p5. So 17th electron भी इधर जाएगा. 5th electron orbital diagram for chlorine. Now valence shell 3s2 and 3p5. So students, now we have argon whose atomic number is 18. So configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p6. So this is the valence shell. And 3s2 already had 3p6. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So this is now argon. Next in the sequence is potassium. 19 हो गया. So now students 18 तक का configuration argon का है. So with respect to noble gas argon, we have 18 electrons argon तक. And now 19th electron अभी 3p के बाद alpha sequence में students 4s आएगा. अभी तक 4s empty था, but अब 4s में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा. So this is potassium. Then we have calcium 20, and it can be represented as argon 18. Now 19th and 20th electron, they enter into 4s. And अगर आपको ऑर्बिटल डायग्राम से शो करना हो तो 4s को ही शो करो. 4 यहां तक का ऑलरेडी आपको पता है. So 4s has 2 electrons. So students, these are the first 20 elements. Now अब जो आपका कॉन्फ़िगरेशन आपको डिस्कस करना है स्टूडेंट्स, वो है आपका डी ब्लॉक एलिमेंट. सबसे पहला आ गया स्कैंडियम, whose atomic number is 21. Now students see, अगर मैं पूरा सीक्वेंस लिखता हूं, पहले दो इलेक्ट्रॉन 1s में, नेक्स्ट 2s, नेक्स्ट 6 2p में. सो अभी तक 10 हो गए. देन 3s2 12 हो गया. 3p6 18 हो गया. दैट मीन्स इसका नियरेस्ट नोबल गैस आर्गन ही होगा. एंड देन वी हैव 4s2 20. एंड 4s के बाद स्टूडेंट हाफ सीक्वेंस में वी हैव 3d and 1. So we have how many?
21 इलेक्ट्रॉन्स. नाउ स्टूडेंट्स, यहां तक का कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस आर्गन का था. सो इट इज आर्गन एंड देन वी हैव 4s2 and 3d1. दिस इज एज पर ऑफ सीक्वेंस. बट स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताना चाहूंगा दैट व्हेन वी फिल इलेक्ट्रॉन्स वी फिल देम अकॉर्डिंग टू ऑफ सीक्वेंस. दैट मीन्स आप इंक्रीजिंग एनर्जी का जो ऑर्डर है वो फॉलो करोगे. बट स्टूडेंट्स, वाइल रिपोर्टिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टू द एग्जामिनर से आपको याद रखना है, सी नो डाउट 4s का एनर्जी कम था, सो वी हैव टू फिल दैट ऑर्बिटल फर्स्ट. बट उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है एंड 3d ऑफ सीक्वेंस में जो बाद में भरा गया उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है. दैट मीन्स ये जो आपका ऑर्बिटल है ये फोर्थ शेल का नहीं है, ये थर्ड शेल का है. So students, while reporting or while writing electronic configuration, this is very important that आप ऑर्बिटल को ऑफ सीक्वेंस के हिसाब से ही भरोगे. बट while reporting it to the examiner or while writing electronic configuration, see, आपको उस ऑर्बिटल को पहले लिखना होगा जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लोअर है. दैट मीन्स आप 3d को लिखोगे पहले. स्टूडेंट, सिर्फ लिखना पहले है, भरना नहीं. भरने का तो सीक्वेंस वही है, बट आप जब उसको रिपोर्ट करोगे किसी भी एग्जामिनर को तो आपको रूल फॉलो करना पड़ेगा, विच इज दैट ऑलवेज राइट दैट ऑर्बिटल फर्स्ट विच हैज लोअर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बिकॉज ये आपका थर्ड शेल का ऑर्बिटल है. नो डाउट उसका एनर्जी 4s से ज्यादा है, सो फिल उसको आपने 4s के बाद करना है, लेकिन लिखते वक्त उसको पहले लिखना है. सो दिस इज ओनली फॉर राइटिंग कॉन्फ़िगरेशन. दैट मीन्स सिर्फ रिपोर्ट करते वक्त आपको उसको पहले लिखना, अदरवाइज भरते हुए तो स्टूडेंट्स आपको ऑफ सीक्वेंस को जहां तक पॉसिबल हो फॉलो करना है. सो स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस वॉज स्कैंडियम. नाउ स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट एलिमेंट आफ्टर स्कैंडियम वी हैव what? Say titanium, whose atomic number is 22. So argon is the nearest noble gas. 18 electrons यहां तक हो गए. Next 4s2 and then 3d2. So ये हो गया ऑफ सीक्वेंस. बट स्टूडेंट्स, आपको जो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगा कॉन्फ़िगरेशन का उसमें आर्गन यहां तक ठीक है, बट 4s आपने भरा पहले है बट लिखोगे उसको बाद में. सो दिस इज द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टाइटेनियम. नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी हैव वेनेडियम विच इज 23. एज पर ऑफ सीक्वेंस आर्गन 18, 4s2 20 हो गए इलेक्ट्रॉन एंड 3d 3. बट अगेन स्टूडेंट्स, the correct way of representing configuration of vanadium would be what? यहां तक ठीक है आर्गन, बट आप 3d को लिखोगे पहले, भरोगे बाद में, लेकिन लिखना पहले है. सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सो स्टूडेंट्स, ऐसा डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक में करना पड़ेगा आपको. सो कोई भी एलिमेंट डी और एफ ब्लॉक का होगा. सो आपको पता है कि ऐसे सबशेल को कई बार पहले भरना पड़ सकता है एज पर n+l रूल, लेकिन लिखते वक्त स्टूडेंट्स हमें इसको बाद में ही लिखना पड़ेगा. सो नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ क्रोमियम. अभी क्रोमियम के बारे में आपको बता दूं, थोड़ा इस पे एस्ट्रिसिक लगा रहा हूं बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस. आपके डी ब्लॉक का जो पहला रो है दैट इज फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है स्कैंडियम से जिंक तक. उसमें दो ऐसे केसेस आएंगे जिनका कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल होता है, मींस एज पर रूल नहीं होगा. सो कौन सा रूल वायलेट होगा वो आप समझ जाओगे. क्रोमियम हैज कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 24. सो आपको 24 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है. पहले 18 इलेक्ट्रॉन्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में होंगे. नाउ अगले 2 इलेक्ट्रॉन 4s में जाएंगे एंड देन स्टूडेंट्स 3d. सो दैट मीन्स 20 एंड 4 इधर जाने चाहिए. और अगर आप इसको करेक्ट वे में लिखना भी चाहो स्टूडेंट्स, आर्गन 18 3d4
4s2। सो स्टूडेंट्स, ये तो था हाफ ऑफ सीक्वेंस और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, सबको फॉलो करते हुए मैंने ये कहा। बट स्टूडेंट्स, जनरली अब हम क्या करते हैं, डी को ही ग्रेजुअली भर रहे हैं, जो कि मैंने किया। बट स्टूडेंट्स, दिस कॉन्फ़िगरेशन इज रॉन्ग। फिर भी माना गया है ये रॉन्ग है। अब रॉन्ग क्यों है वो अभी आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है। जो स्टूडेंट्स पहली बार इसको कॉन्फ़िगरेशन को लिख रहे हैं, मींस अभी तक आप बोहर्स जो मॉडल है उसके अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे, जहां पर आप ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन फिल करते थे, अब ऑर्बिटल में फिल कर रहे हैं एज पर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। और जो रूल्स मैंने बताए उसके हिसाब से 3D को ग्रेजुअली फिल करते हैं। वो तभी पॉसिबल है जब आप 4s को व्हाट फुली फिल करते हैं, उसके बाद इसमें मूव करते हैं। बट नाउ स्टूडेंट्स, जब इसका करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम का लिखना होगा, एक इलेक्ट्रॉन हम प्रमोट करेंगे 4s से 3D में। मैं इसको प्रमोशन ही कह रहा हूं क्योंकि एनर्जी वाइज आपका 4s ऑर्बिटल लोअर एनर्जी का है एंड 3D हायर एनर्जी का है। एंड दिस गिव्स अस आर्गन 18, 4s1 and 3D 5. So this is the correct configuration of chromium. अब स्टूडेंट, ऐसा प्रमोशन क्यों हुआ या मैंने क्यों किया, तो उसके लिए मैं आपको अभी जस्ट इतना बता देता हूं कि जो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है क्रोमियम का, this is on account of extra stability associated with 3d5 configuration than the 3d4 configuration. So 3d5 के साथ extra stability associated है, इसीलिए आपने इस रूल का वायलेशन करते हुए भी आपने एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट किया है। सो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ऑफ सीक्वेंस को हमने यहां पर, ठीक है, ऑल्टर किया है और यहां से इलेक्ट्रॉन यहां प्रमोट कर दिया। रीजन, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी एसोसिएटेड है। अब वो क्यों है, दैट विल डिस्कस इन डिटेल, वो अगले लेक्चर में होगा। सो स्टूडेंट्स, क्रोमियम के बाद नेक्स्ट एलिमेंट वी हैव मैंगनीज। नाउ मैंगनीज हैज कॉन्फ़िगरेशन, मैंगनीज आपका हुआ 25, सो आर्गन तक 4s2 हो जाएगा एंड 3d 5। सो अगेन वही बात, दैट जब कॉन्फ़िगरेशन को अब रिपोर्ट करना है आपको या लिखना है, तो आपको इस सबशेल को या इस ऑर्बिटल को पहले लिखना पड़ेगा क्योंकि इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लोअर है और ये 4s2 बाहर। अभी कोई प्रमोशन करने की जरूरत नहीं है बिकॉज 3d5 ऑलरेडी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के साथ एसोसिएटेड है। सो स्टूडेंट्स, एक्सेप्शनल सिर्फ क्रोमियम में था अभी तक के एलिमेंट्स में। सो दिस इज मैंगनीज। Next in the sequence is iron, which is 26. Iron has configuration argon 4s2 3d6, and the correct way of writing or reporting it is 3d6 is written first and then 4s2. So students, इसी तरह से आप कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन प्रैक्टिस करेंगे। Then we have nickel, there are no exceptions. एंड देन स्टूडेंट्स, जिंक का भी आप लिखेंगे। अभी मैं कॉपर को छोड़ रहा हूं, उसमें भी क्रोमियम की तरह एक एक्सेप्शनल बात है, मींस वहां भी एक इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करना पड़ेगा। दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू।